Hello friends, how are you all? I am C.A. Zainab Razi and with me you will be learning bank reconciliation statement today. So, first of all, bank reconciliation statement. This is a very important chapter from CA Foundation point of view क्योंकि हर बार CA एग्जाम में ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है. Even bank reconciliation statement is a very practical subject also, a very practical chapter. So, रियल लाइफ में भी आपको काफी काम आता है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है. इट इज अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर. You just need to understand the technicalities which you will understand in the first or the second video itself. And then bank reconciliation chapter is just a piece of cake. The only advice here is just follow as I say and it will be very easy for you later on. So let's get started that what is bank reconciliation statement. Now, as the name suggests, first of all, bank reconciliation statement. Statement means you need to understand that bank reconciliation statement is also known as BRS. That BRS does not form part of books of accounts. It is not a part of books of accounts. Basically, that journal, ledger, trial balance, final accounts, this never comes in between of any of those, but we'll understand then why is it important, why do we have to understand this chapter, and I told it is required practically. Also in real life you need this every now and then. So let us understand why. So first, it does not form part of books of accounts. It is just a statement. Now, a statement of what? So there also the name suggests it is a reconciliation statement. Reconciliation statement का मतलब क्या होता है? To reconcile, to match. किसी चीज को reconcile करना है या match करना है. Reconcile होता है क्या है कि कोई दो चीजों में difference है तो वो difference क्यों है वो जानना मतलब reconciliation होता है. So here we have to reconcile something. Now what do we have to reconcile? क्या reconcile करना है? हमें there is something related to bank जो हमें reconcile करना है. So now let us understand that what do we reconcile and why is there a need to reconcile. जब हम books of accounts properly बना रहे हैं, हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये रिकंसिलिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? द मेन रीजन ये रिकंसिलिएशन की जरूरत क्यों पड़ी इज बिकॉज आपने अपने बुक्स में एक बैंक अकाउंट आप बनाते हो, राइट? आप डबल एंट्री सिस्टम करते थे. आपको जब किसी कस्टमर से बैंक से पैसा आता है, चेक मिलता है, आप चेक को डिपॉजिट करते हो तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हो. सिमिलरली आप चेक इश्यू करते हो तो आप बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हो, राइट? तो आप अपने बुक्स में बैंक अकाउंट बनाते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं अपने बुक्स, मतलब हम बिजनेस की बुक्स की अभी बात कर रहे हैं. हम अपने आप को हमेशा बिजनेस ही ट्रीट करेंगे अकाउंट्स करने के टाइम पे, सो दैट इज इजियर. सी, इन रियल लाइफ प्रैक्टिकली आप अकाउंट्स कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. आप अपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई कीजिए. दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स. बट फ्रॉम अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू वी ऑलवेज the questions come or we always think from business point of view. So whatever the question is, whatever the name of business is, you consider yourself as that business. So then it will become easier for you. Okay, so let us see कि हमारे बुक्स में हम बैंक अकाउंट कैसे बनाते थे. So हम सबने सब्सिडरी बुक पढ़ा है. सब्सिडरी बुक के अंदर कैश बुक आता है. नाउ कैश बुक कौन से तरह के होते हैं? तो देयर इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश अकाउंट बनता था. देन देयर इज अ डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक में आप लोगों ने 11th-12th में आप लोगों ने कैश और बैंक अकाउंट्स बनाए होंगे. टेक्निकली बच्चों, सीए फाउंडेशन के एंगल से डबल कॉलम कैश बुक में एक्चुअली कैश एंड डिस्काउंट के कॉलम आते हैं. टेक्निकली अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट आता है. तो फिर मैम कैश एंड बैंक का आता है. कैश बुक में एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनती है. इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट. ओके, सो फर्स्ट थिंग तो हमें पता चल गई कि हमारा बैंक अकाउंट, लाइक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है कैश बुक में. कैश बुक के कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में बैंक की डिटेल्स मेंटेन होती है. ओके, नाउ ये मेरी बुक्स के हिसाब से बैंक अकाउंट हो गया. बट आप जिस भी बैंक में जाके अकाउंट ओपन करते हो, क्या वो बैंक आपको उनका स्टेटमेंट देती है? यस, देती है. इन द फॉर्म ऑफ पासबुक
or in the form of bank statement. Generally in case of businesses, since their transactions are huge, you get a bank statement, and for us, for individuals, हम सेविंग बैंक में हमको जनरली पासबुक मिलती है. So इसका मतलब क्या हुआ, आप जो अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, सिमिलरली आपकी बैंक उसके बुक्स में, बैंक की बुक्स में भी आपका अकाउंट मेंटेन करती है, राइट? अब आपकी बुक्स में भी वही बैंक अकाउंट, आपने सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने हमारा एसबीआई में अकाउंट है, तो हम हमारी बुक्स में एसबीआई का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें हम एंट्री करते हैं. सिमिलरली आप एसबीआई की बुक्स में देखेंगे तो एसबीआई की बुक्स में आपका अकाउंट बना होगा. सपोज आई टेक माय नेम ओनली, ज़ैनब अकाउंट, ज़ैनब एंटरप्राइज. मेरा एक शॉप है जिसका नाम है ज़ैनब एंटरप्राइज, तो वहां पे भी ज़ैनब एंटरप्राइज का अकाउंट होगा. अच्छा, ये क्या है, ये एसबीआई अकाउंट इज माय बैंक अकाउंट विच इज शोन इन द कैश बुक. So technically, don't you feel that the balance which is there in my cash book, मेरे कैश बुक में जो बैलेंस है वो ही मेरे बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के हिसाब से जब मैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से चेक करूं तो एज ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन पर मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है और बैंक के अकाउंट में जो बैलेंस है वो सेम आना चाहिए. आना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली आना चाहिए. बट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ दैट दिस बैलेंस as per my books and the bank books do not tally. Now why does not it tally, we will understand in this chapter called bank reconciliation statement. And it does not tally does not always mean कि कोई गलती हुई है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये बैलेंस दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो कोई एरर है. नहीं, एरर हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ I can say transactions, or there are many other reasons why there is a difference in those balances. उसे हमको रिकंसाइल करना पड़ता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में. We'll understand. पहले हम इसको ही और डिटेल में समझते हैं. देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए. अभी सपोज मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे हूं. सिंस हमने बात की कि बैंक अकाउंट हम हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे मेंटेन करते हैं, सो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक, आई जस्ट मेक अ, see we used to prepare triple column cash book something like this. There are 3 columns on the debit side, left hand side, and again there are 3 columns, and then there is LF also. beta LF ko abhi chalo, I have made LF also, and then there are 3 columns on this credit side. Okay, so the 3 columns is, generally we used to write cash before, but let me write bank, cash and discount allowed on the debit side. And then there is bank, cash and discount received on the credit side. Okay, now you know that whenever we do entry here cash book, we know that whatever amount comes in either by cash or by bank, we debited. Our bank account is our asset. Whenever money is coming in the business, our asset increases, that is why debit. और कैश अकाउंट में भी हम वही रूल यूज करते हैं, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. सो व्हेनेवर कैश कम्स इन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, वी डेबिट द बैंक अकाउंट. सो बेसिकली डेबिट साइड में क्या आता है, रिसीट्स, एंड हमारे क्रेडिट साइड में क्या होता है, पेमेंट्स. दिस इज ऑल्सो एलएफ. नाउ सिंस वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ बीआरएस, आई विल बी यूजिंग द वर्ड कैश बुक वेरी ऑफन, बट what you guys have to understand, जब मैं कैश बुक बोलूंगी तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कैश बुक इज नथिंग बट माई बैंक अकाउंट इन माई बुक्स. बिजनेस की बुक्स में बिजनेस का बैंक अकाउंट लिख देते हैं, ये भी साथ में नोट्स बनाएंगे आप लोग सब. सो कैश बुक, जब हम बीआरएस की चैप्टर की बात करेंगे तो कैश बुक इज नथिंग बट बिजनेस की बुक्स में, बेसिकली बिजनेस की बुक्स मतलब हमारी बुक्स में हमारा बैंक अकाउंट, मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सब ट्रांजैक्शंस बराबर रिकॉर्ड कर रही हूं, कितना अमाउंट होना चाहिए वो पता चलता है. सो एक बात हमें और समझ में आ गई कि हम सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करेंगे इस चैप्टर में. दैट्स व्हाई आई डोंट नीड दिस कैश एंड डिस्काउंट अलाउड फॉर दिस चैप्टर, आई कैन कट इट. ओके, नाउ सिमिलरली ये हमारी बुक्स हो गई. सिमिलरली इफ यू गो टू बैंक, देन बैंक भी आपका अकाउंट बना के रखता है. तो ये हमारी बुक में एसबीआई का अकाउंट था, और अब मैं अगर इन द बुक्स ऑफ एसबीआई
इन द बुक्स ऑफ एसबीआई की बात करूं तो उन्होंने भी जैनब अकाउंट बना के रखा है, जिसके अंदर वो देखिए आपका पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कुछ ऐसे आता है आपको। अभी मैं आपको एग्जैक्ट जैसे आता है वो बता रही हूँ, नीचे फिर हम समझने के लिए नॉर्मल टी फॉर्म में भी करेंगे। सो डिटेल्स कुछ इस तरह मेंशन होती है। पर्टिकुलर्स वो लोग डिपॉजिट्स एक तरफ लिखते हैं, व्हेनेवर मनी इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट, विड्रॉल्स एंड यू गेट द बैलेंस, राइट? एंड देन this balance which is coming as per passbook and the balance which is shown, generally it is a debit balance, debit का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आता है। this balance should tally, ऐसा होना चाहिए, but I am saying that many a times this does not tally and hence a reconciliation is BRS is required to be prepared. to understand first the differences, पहले हम एक और चीज जो मेन है जो समझना जरूरी होगा वो समझते हैं। तो now see, pay attention. Okay, so this is my cash book. Now I'll just come on to bank column. I'll just make a normal ledger account. So this is my cash book bank column. Okay, and this is my passbook as per my passbook. Okay, my account as per my bank account as per the bank. See, in your books whenever money comes in the business you debit it. आप जब अमाउंट आता है आप डेबिट करते हो. So suppose amount received from Ravi, so you sorry, not amount, I should say check received from Ravi deposited immediately. So if a check is received and deposited in a bank, what entry do we do? हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ मैं बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट. अमाउंट इज सपोज 1 लाख. और हम अगर पासबुक की बात करें तो पासबुक को अगर मैं टी फॉर्म में बनाने जाती हूं, अगर आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, पासबुक आपकी अकाउंट को क्रेडिट करता है. मतलब एसबीआई की बुक्स में आपका अकाउंट क्रेडिट होता है जब आप अपने अकाउंट को डेबिट करते हो. इसके ऊपर हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है. सो दे विल राइट देयर सी योर डेबिट साइड इज रिसीव्स or deposits. I should write the word deposit so that it's easier. And in your bank, your credit side is withdrawal in your books. Whereas if we talk about bank books, debit is withdrawal. It's opposite basically. And credit is deposit. Okay? Credit is deposit and debit is withdrawal. Why? I'll come on to that point. Let me just complete it. So buy Ravi 1 lakh. Then and suppose check issued to Mohan. So check issued to Mohan. What entry you do? Mohan account debit because he is the receiver. Debit the receiver, credit the giver. Mohan is a receiver, debit. And bank is going out. Money is going out from the bank. So आप मोहन को क्रेडिट करते हो in your books. Say suppose the amount is 50,000 and पासबुक में डेबिट होना चाहिए क्योंकि विड्रॉ हुआ है, टू मोहन होना चाहिए 50,000. नाउ टेक्निकली आफ्टर दिस योर बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन शुड बी 50,000 and similarly here the balance should be 50,000. But it's not that simple and always this balance. Right now I've done a question where the balance is tallying, but this does not tally and hence we prepare a BRS. Now, so what did we say here? Wait. So first we understood one thing that now you'll have to do this right now once the video is over. आप लोग अपने मम्मी पापा या आपकी खुद की भी आई बिलीव सेविंग बैंक अकाउंट होगा, आप उसमें जाके अपना बैलेंस देखिए. आप उसमें बैलेंस देखेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे सेविंग बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा. आप बैलेंस के बाजू में देखना जो भी अमाउंट है, सो वट एवर 60,000 CR क्रेडिट लिखा हुआ. अब हम तो यार अकाउंट्स के बच्चे, हम तो कॉमर्स के बच्चे हैं, हमें तो पता है कि हमारे एसेट्स डेबिट होते हैं, हमारी लायबिलिटीज क्रेडिट होती है. तो हमारा बैंक अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है या एसेट? हमारा बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट है. आप हमारी बुक्स देखेंगे, बिजनेस की बुक्स देखोगे तो देखिए
डेबिट का टोटल वॉज मोर 1 लाख. You just have written on the credit side to balance it. But what is this 50,000? This 50,000 is debit balance, correct? बैंक अकाउंट में आपका पैसा होना इज योर एसेट. आपकी बुक्स में डेबिट बैलेंस है, लेकिन बैंक के एंगल से देखो, आपका पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो वो लायबिलिटी है. क्यों आपको पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखता है और क्रेडिट बैलेंस देख के आप खुश भी होते हो? द रीजन इज वो बैंक की बुक से. अच्छा, कभी भी आप जाके पासबुक में खुद से एंट्री कर सकते हो क्या? कभी ऐसा होता है कि आपने पासबुक में अपने मम्मी पापा से पूछना मैं खुद कुछ लिख सकता हूँ? नहीं. खाली कुछ लोग क्या लिखते हैं कि ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं पासबुक में, प्रिंट करवा के हम लाते हैं पासबुक. ओनली यू राइट द डिटेल्स सो दैट यू डोंट फॉरगेट कि अरे ये पैसा कहाँ यूज हुआ, ये चेक किसको दिया था, किस रीजन से दिया था. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप करते हो, बट कोई अमाउंट की एंट्री आप नहीं करते. क्यों? ये जो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैंक की बुक्स है, आपकी बुक्स नहीं है. बैंक की बुक्स हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते. लेकिन उनकी बुक्स में जो आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपका अकाउंट है ज़ैनब अकाउंट. सिंस यू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट, आपका पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, तो फॉर देम इट इज अ लायबिलिटी. इसलिए आपकी बुक्स में जब कैश बुक डेबिट होता है तो पासबुक में बैलेंस क्रेडिट होता है, बिकॉज फॉर देम इट्स अ लायबिलिटी. होप आई एम क्लियर योर. इसे भी नोट डाउन करेंगे. सो व्हाट डिड वी लर्न? दैट कैश बुक व्हेन इट हैज अ डेबिट बैलेंस, देन passbook will generally have a credit balance. It should have a credit balance and both are what? Both are favorable. आपके बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस होना अच्छी बात है. सिमिलरली आप देखेंगे पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होना अच्छी बात है. वो ये दर्शाता है कि हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है. सो दिस इज अ गुड थिंग. ओके, नाउ सो मैम आपने बोला कि कैश बुक व्हेन इट हैज अ डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. मतलब कभी होता नहीं है क्या? सी, हम लोग का इंडिविजुअल ना सेविंग अकाउंट होता है, सो वी हैव अ पासबुक जिसमें हमेशा हमको क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा. बट आप बिजनेस के एंगल से बात करो तो चलो एक चीज समझते हैं. देर आर टू टाइप्स, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट टू. व्हेन यू गो टू बैंक टू ओपन एन अकाउंट, इधर अगर आप इंडिविजुअल है तो आपका सेविंग अकाउंट ओपन होगा, एंड इफ यू आर अ बिजनेस तो सेविंग अकाउंट इज फॉर इंडिविजुअल्स. नाउ इन दिस एवरी बैंक डिपेंडिंग ऑन द their norms and depending on the bank, they give you some limit that आपके सेविंग अकाउंट का मिनिमम आपका बैलेंस 1000 होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस 5000 होना चाहिए. whatever that means आपका सेविंग अकाउंट में हमेशा पैसा होना चाहिए. या मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कैन बी 0. what I want to say is आपके सेविंग बैंक में या तो पैसा होगा या नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव्स में नहीं जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे पास सेविंग अकाउंट में सपोज 10,000 रुपीज है और मैंने बैंक को बोला मुझे 12,000 दे दो, मुझे अर्जेंट जरूरत है, और बैंक ने दे दिया. नेवर इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट. सो सेविंग अकाउंट ऑलवेज विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बट फॉर बिजनेसेस वी हैव टू ओपन करंट अकाउंट इन बैंक्स. नाउ करंट अकाउंट्स हैव दिस फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट. सो जनरली इफ दिस फैसिलिटी इज नॉट बीइंग यूज्ड, देन करंट अकाउंट में भी वही है कि जितना पैसा आपके पास है आप उतना यूज करेंगे. बट बैंक्स करंट अकाउंट वाले को, बिजनेस वालों को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है जहां पे मेंशन किया जाता है, एक लिमिट दी जाती है कि सपोज टू दिस फलाना बिजनेसमैन XYZ लिमिटेड वी गिव एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसे ओडी भी बुलाता है, बैंक ओडी. याद आया? आप लोग अपने 11th-12th में फाइनल अकाउंट में बैंक ओडी को अच्छे से लाइबिलिटी में लिखते थे, जबकि कैश एट बैंक या सिर्फ बैंक अकाउंट रहता था तो उसे एसेट में लिखते थे. क्यों? बैंक ओडी मतलब ओवरड्रॉ, ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर विड्रॉ. जितना आपके पास अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर दिया, उसे ओवरड्रॉ बोलते हैं. तो क्या ये अलाउड है? यस, इन केस ऑफ करंट अकाउंट्स ओनली. If the bank has given an overdraft facility, then it is allowed that you withdraw more. मतलब ये सेम सिचुएशन अगर यहाँ करंट अकाउंट में होती तो देन डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स विद द बैंक आपको वो अलाउ कर देते हैं कि आपके पास 10,000 रुपीज है लेकिन आप 12,000 विड्रॉ कर लो. मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या होता है कि अभी सपोज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ करंट अकाउंट. अच्छा, every business account has different OD limits. That is their terms with the bank. So we are not going in those details. Okay. What we need to understand is that suppose
ये XYZ लिमिटेड को ओवरड्राफ्ट लिमिट दी गई है 30,000 की, उन्होंने उनकी बैंक ने उन्हें दिया। नाउ XYZ लिमिटेड के अभी फिलहाल बैलेंस में बैंक में सपोज 50,000 रुपीज है and it needs to pay urgently rupees 65,000 to one of its suppliers. Since XYZ Limited has an overdraft facility of 30,000, what will it do? ये 65,000 का चेक दे देगी अपने सप्लायर को, चेक दे देगी और उसके बाद बैंक 50,000 तो उसके अकाउंट से लेगा, बाकी रिमेनिंग 15,000 वो खुद से इस चेक के अगेंस्ट पे कर देगा। यस, नो डाउट लेटर ऑन बैंक हमसे फिर वो पैसा वसूल लेता है, बट फिलहाल क्या हुआ, ये फैसिलिटी होने की वजह से एक अच्छी बात होगी कि हमारा चेक सबसे पहले तो बाउंस नहीं हुआ, हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी तो हम अपने सप्लायर को पे कर चुके, लेटर ऑन वी पे टू द बैंक। बट ये सब चीज समझाने का मेन मतलब ये था कि करंट अकाउंट की जब मैं बात करती हूँ तो करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस तो हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस इज गुड, फेवरेबल, कि हाँ पैसा है अकाउंट में, बट करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब समझो, करंट अकाउंट कौन बना रहा है? ये करंट अकाउंट बना रही है बैंक, ये बैंक की बुक्स है। बैंक की बुक्स में क्रेडिट होना मतलब लायबिलिटी, दे हैव टू पे मनी टू अस, एंड बैंक की बुक्स में डेबिट होना मतलब एसेट। सो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, दे हैव टू टेक मनी फॉर अस, इन दैट केस उनकी बुक्स में डेबिट बैलेंस दिखेगा और हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। तो ये जो हमने ऊपर लिखा था, so there can be a case where cash book has a credit balance which is also called overdraft and unfavorable balance, whereas in this case passbook will have a debit balance. Whenever you see passbook is having a debit balance or you see that cash book is having a credit balance, you need to understand that this is overdraft and it is a unfavorable balance. Okay, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमने अभी तक क्या सीखा, क्विक रिकैप करते हैं। तो हमने पहले तो ये सीखा कि बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, अकाउंट का फॉर्म पार्ट नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम, एज सच डेबिट क्रेडिट कुछ भी आप आगे देखेंगे। आज मैंने डेबिट क्रेडिट की बात की, बट आगे हम डेबिट क्रेडिट सोचेंगे ही नहीं। ये तो खाली आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझाने के लिए कि क्या चल रहा है, क्यों मेरे अकाउंट के हिसाब से तो एसेट है, लेकिन हमारे पापा मम्मी या मैं खुश हो जाती हूँ जब मेरा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जो मेरा एसेट है वो पासबुक बैंक की बुक है। आपको बस इतना समझना है, बैंक की बुक है, बैंक की बुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब बैंक बोल रहा है कि हाँ ये पैसा, बैंक बोल रहा है ये पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए मतलब बैंक के लिए, क्योंकि जब भी जैनब पैसा मांगने आएगी मुझे देना पड़ेगा। ओके, सो दिस वी लर्नड अप टिल नाउ एंड ऑल्सो वी अंडरस्टूड दैट व्हाई बीआरएस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ये जो हम कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, ये बैलेंसेस कभी कभी टैली नहीं होते। इनफैक्ट आई वुड से ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये टैली नहीं होते। सो आपको अब ये समझना पड़ेगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बीआरएस इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी एक डेट पे आप, इट कैन बी एनी डेट, आपको एवरी 15 डेज चेक करना है आप करिए, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर, वॉट एवर, बट बीआरएस इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल the difference between cash book and passbook. Okay, now let's understand what can be the differences. Okay, so I'll list a few right now और एक एक को समझते हैं। Now we are talking about reasons for the difference. ये मेन पार्ट है और ये reasons अगर आपको समझ गए देन बीआरएस इज जस्ट अ केक वॉक। अभी तक हमने बस थियोरेटिकली वो चैप्टर को समझने की कोशिश की, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली जा रहे हैं। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंस? फर्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड। एक एक को अच्छे से समझेंगे। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर। सी, whenever you receive a check from someone, suppose you receive a check from, हमने ऊपर ही अमाउंट लिया था मोहन, so you receive a check from मोहन, so you do the entry as मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, you receive a check from मोहन and you are immediately depositing into the bank. अभी मैं एकदम उसके अंदर नहीं जा रही हूँ, I'm not going to the journal entry flow, I'm just saying आपको चेक मिला और आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये एंट्री आप कहाँ कर रहे हो, कैश बुक में या पासबुक में?
ऑब्वियसली आप कैश बुक में कर रहे हो क्योंकि पासबुक में तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते हैं, राइट। हाँ, बट मेरे बुक्स में एंट्री मुझे करनी पड़ी कि बैंक में पैसा आएगा सपोज 10,000 एंड मोहन अकाउंट क्रेडिट 10,000। मोहन से ये पैसा मिल गया, मोहन इज द गिवर, हमने ये एंट्री कर दी। नाउ व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली, सो आज ये एंट्री हुई, सपोज टुडे वाज 27th ऑफ मार्च, जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज टुडे वाज 27th ऑफ मार्च जब मुझे ये चेक मिला। नाउ टुडे इन द इवनिंग वंस आई क्लोज्ड माय शॉप एंड एवरीथिंग, मैंने बैंक के बाहर जो चेक ड्रॉप बॉक्स होता है वहां पे चेक जाके डिपॉजिट कर दिया, मतलब चेक जाके मैंने ड्रॉप कर दिया बैंक अकाउंट में। तो मेरी एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, मैंने चेक ड्रॉप कर दिया है बैंक में, ओके। अब 27 मार्च के बाद सो आज का दिन तो हो गया, 28 मार्च सपोज वॉज अ सैटरडे, 30th मार्च सपोज वॉज अ संडे, सो ये 2 days बैंक हॉलीडे थी, ओके। 31st मार्च को बैंक खुली, 31st मार्च को जब बैंक ओपन हुआ, एज इट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, सो बैंक इज बिजी, ये वो ठीक है, उन्होंने चेक्स कलेक्ट तो किए, बट आपको क्या लगता है चेक बैंक के पास मिलते ही तुरंत हमारा अकाउंट में पैसा आ जाता है? नो बेटा, दीज ट्रांजैक्शंस डू टेक टाइम, प्रोसेसिंग टाइम होता है। क्यों? क्योंकि सपोज आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई में, नहीं हमारा अकाउंट था एसबीआई अकाउंट में, चलो हमारा एसबीआई बैंक है तो हमने तो चेक ड्रा के एसबीआई के अकाउंट में ड्रॉप कर दिया है। ये मोहन ने जो चेक हमको दिया वो आईसीआईसीआई अकाउंट से दिया था। व्हाट रियली हैपेंस इज एसबीआई वाले आईसीआईसीआई को कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये चेक मिला है फ्रॉम, और मोहन के अकाउंट से इतने 10,000 वी शुड रिसीव। फिर आईसीआईसीआई मोहन के अकाउंट में जाती है, वहां से 10,000 निकालती है, फिर एसबीआई को देती है, एसबीआई फिर हमारे अकाउंट में देता है। ये सब प्रोसेस करने में 1, 2, 3 days लग जाते हैं। सो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है दैट whenever a check is deposited, immediately you never receive money. हाँ, you can immediately receive money when it is an NEFT, जो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वगैरह की बात करें, अब से इलेक्ट्रॉनिकली जीपे वगैरह आ गया है तो उसमें चलिए तुरंत पैसा मिल जाता है। बट आपको कोई चेक मिला, आपने आज डाला और आज ही अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो बात क्या हुई कि ये पैसा फाइनली मुझे 2 अप्रैल को मेरे बैंक अकाउंट में शो हुआ, मतलब अब जाके पासबुक में शो हुआ। मैंने 27 मार्च को मेरे कैश बुक में एंट्री कर दी थी। वॉज आई रॉन्ग इन डूइंग द एंट्री? नो, आई वॉज 100% करेक्ट इन डूइंग द एंट्री। वाई? आई रिसीव द चेक, सो बैंक डेबिट होना चाहिए। और ये मोहन की लायबिलिटी खत्म करनी जरूरी थी ना, कि हाँ मोहन ने पैसा दे दिया है, ये एसेट खत्म करना जरूरी था, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू शो। सो मोहन क्रेडिट करना भी जरूरी था। सो हियर आई एम डूइंग द एंट्री, दैट इज करेक्ट। But can I blame the bank people that you are doing the entry after such a long days, after so many days? No, bank is also correct. See, बैंक किस वे पे चलता है कि बैंक में जब पैसा आएगा, तुम डॉक्यूमेंट वाइज कुछ भी ट्रांजैक्शन करो, बैंक में जब पैसा आएगा तब बैंक एंट्री करेगी। सो बैंक में पैसा आया 2 अप्रैल को। सो आप इतने दिन अगर देखेंगे बीच में, आपको नहीं लगता कि इसके बीच में अगर 31 मार्च को, क्योंकि मेरा भी फाइनेंशियल ईयर एंड है, मैं बुक्स क्लोज कर रही होंगी और मैंने मेरा पासबुक उस दिन अगर प्रिंट करवा के लाती हूँ तो व्हाट डू आई सी दैट माय कैश बुक इज शोइंग अ मोर बैलेंस, क्योंकि मुझे 10,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है जो मेरे पासबुक में शो नहीं हो रहा। दिस इज वन ऑफ अ टाइमिंग डिफरेंस, इसे बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस। हियर व्हाट इज हैपनिंग, नो वन इज एट एन एरर, किसी ने भी मिस्टेक नहीं की, दे आर डूइंग इट करेक्टली, बट यस बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन टाइम हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। हमारी कुछ एंट्रियां, सी ये एंट्री रीजंस फॉर डिफरेंस की जो मैं बात कर रही हूँ ना, व्हाट आर द रीजंस कि कैश बुक या पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। देर आर सम एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। देर आर ऑल्सो सम एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन पासबुक बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसमें से एक मैंने अभी डिस्कस किया। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द रीजंस कि क्यों ऐसे, ये जो रीजन हमने बात की है, कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, पासबुक में नहीं रिकॉर्ड होते हैं, कुछ पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज कुछ एरर्स या तो कैश बुक में हो सकते हैं या तो पासबुक में। यस, एरर्स इज पॉसिबल बेटा, बट मेन रीजन ऊपर वाले होते हैं। सो देयर कैन बी सम एरर्स इन कैश बुक एंड सम एरर्स इन पासबुक। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेज वी रियलाइज दैट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया, एज ऑन 31 मार्च शायद मेरा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है, तो मुझे बीआरएस बनाना पड़ता है। उसका भी एक रीजन आपको बताती हूँ क्यों। This BRS is also prepared so that you cannot do a fraud. नहीं तो what happens 31st March को, see especially year end, why I have taken 31st March so that it's very clear in our head.
ईयर एंड के टाइम पे ना सभी चाहेंगे कि मैं मेरा अकाउंट्स और मेरी पोजीशन इन्फ्लेट करके बताऊं, मतलब अच्छी करके बताऊं। मेरे बैंक में भले ही 500 रुपए है, मैं मेरे बैलेंस शीट में नहीं बता सकती कि मेरा कैश एट बैंक सिर्फ 500 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से एक चेक ले लिया ऐसे, ठीक है, या किसी से पैसा लेना था तो खाली एक एंट्री, रॉन्ग एंट्री कर दी कि उससे पैसा मिल गया है। तो आज मैंने जब बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया, सी मेरे बैलेंस शीट में तो मेरी बिजनेस की बुक्स अकाउंट्स में जो बैलेंस है वही मेरे बैलेंस शीट में दिखता है। आप पासबुक का बैलेंस, आपके पासबुक में जो 31 मार्च का बैलेंस है वो आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। आपकी बैलेंस शीट में आपके बुक्स के हिसाब से बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वो बैलेंस शीट में दिखता है। ओके, सो मैं क्या कर सकती थी, एक अच्छी खासी बड़ी एंट्री कर दी 31 मार्च के पहले और बाद में जाके रिवर्स कर दिया। बट हम जब अंदर जाके देखेंगे तो कोई चेक मिला ही नहीं था। मैंने एक एंट्री की पोजीशन इन्फ्लेट करने के लिए और मैंने एक एंट्री की पोजीशन डिफ्लेट करने के लिए। ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए बीआरएस बनाया जाता है, सो दैट अब बीआरएस बनाने के टाइम पे आप देखेंगे कि अच्छा ये एंट्री आपने एंट्री तो की है कि चेक मिला, तो फिर ये पासबुक में पैसा बाद में आना चाहिए था। अगर बाद में भी वो एंट्री नहीं दिख रही है मतलब दैट ऑडिटर विल कम टू नो कि आपने कुछ फ्रॉड किया। ओके, सो ये चैप्टर को और अच्छे से हम समझेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू व्यू इट बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बीआरएस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। एक बार आपने पढ़ के वो समझ लिया फिर बीआरएस में कुछ भी नहीं है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू ऑल सून।